चार पुलिस एहलकारों ने रोका और हरबंसपुरा इंटरचेंज से उसको लेकर जंडियाला कब्रिस्तान के करीब उसको उतरे। हम तुम्हें किसी ना किसी केस के अंदर फंसवा देंगे और फंसाने के बाद तुम्हारा पुलिस मुकाबला कर देंगे। हमारा ताल्लुक लाहौर की सबसे सुपीरियर फोर्स CCD से है। जनाब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर अगवाकारों ने कहा कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हरबंसपुरा थाने वाले जब पुलिस का नाम आया तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे। अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए क्या इकदाम करने हैं? क्या अभी नेफे में पिस्टल चलेगा या अभी उस साथियों की फायरिंग से साथी हलाक होगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट जवाद शाह। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एक अगवा की वारदात रिपोर्ट होती है। अगवाकार लाहौर हरबंसपुरा मेडिकल सोसाइटी में रहता है। जब वो अपने घर से दफ्तर के लिए जा रहा था कि उसको चार पुलिस एहलकारों ने रोका और हरबंसपुरा इंटरचेंज से उसको लेकर जंडियाला कब्रिस्तान के करीब उसको उतरे और उतरते साथ ही उसके 10 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया। तो जो मगवी था उसका यह कहना है मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जनाब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर अगवाकारों ने कहा कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हम तुम्हें किसी ना किसी केस के अंदर फंसवा देंगे और फंसाने के बाद तुम्हारा पुलिस मुकाबला कर देंगे। हमारा ताल्लुक लाहौर की सबसे सुपीरियर फोर्स CCD से है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से है। आपको पता है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आजकल बहुत मुतहरिक नज़र आ रहा है। जिस पर जो है मगवी वो परेशान हो गया। उसने अपने दोस्त से रब्ता किया। उसकी टेलीफोन की जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे पास आ गई, जिस पे पुलिस एहलकार अगवाकार जो थे वो मगवी के दोस्त से पैसे मांग रहे थे। मुतालबा किया 10 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ रुपए में बात डन की। मगवी ने बड़ी मुश्किल से पैसों का अरेंज किया। बातों का तबादला हुआ टेलीफोन के ऊपर, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन पर भी सुन सकते हैं। हेलो, हाँ दीम यार भाई वो कह रहे ने 3 करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਨੇ ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਦੀਮ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਲੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀਦ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਾ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੈਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ WhatsApp ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 4 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕੋ ਮੰਗਾਇਆ, 5 ਲੱਖ ਅਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ATM ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਢਾ ਰਿਹਾ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ATM ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪੈਸੇ। ਓਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂ ਭਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਲਾ।
रहने दो फिर अल्लाह मालिक है, ना करो उस कोई भी तुम जनाना। ਉਹ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਜੇ? ਬਾਈ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਾਨ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇ ਏਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ। जो हो रहा भाई मैं तो अपनी फुल एफर्ट मार। अगवाकारों का ये कहना था कि पैसे अच्छे हैं या जान, हम बड़े ख़तरनाक लोग हैं, अगर तुमने पैसे ना दिए तवान की रकम ना दी तो तुम्हें जान से मार देंगे। सीसीडी का तो तुम्हें पता ही होगा। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को जब ये बात पता लगी तो एफआईआर के लिए दरख्वास्त जमा करवाई गई हरबंसपुरा थाने में। हरबंसपुरा थाने वाले जब पुलिस का नाम आया तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, जिस पर एसपी कैंट अली काजी मुतारिक हुए, टैग लगा और मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर हुई जिसमें से एक पुलिस एहलकार जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस एहलकार जो गिरफ्तार हुआ है किला गुजर सिंह में तैनात था, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार शाहिद थाना इलाका मनावा में ऑपरेशन विंग में तैनात है। तीसरा पुलिस एहलकार डिसमिस फ्रॉम सर्विस। चौथा जो है वो प्राइवेट आदमी था जो पुलिस ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। चारों पुलिस एहलकारों ने, चौथा जो था उसकी अभी शनाख्त नहीं हो रही, जिनमें 3 की शनाख्त हुई है। 3 पुलिस एहलकार, 1 डिसमिस, 2 जो है मुतलका डिवीज़न में तैनात है, 1 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। मगवी का यह कहना है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट तो बहुत दावे करती है, कभी नेफे में पिस्टल चलता है, कभी सराह जलते हुए साथियों की फायरिंग से साथी हलाक हो जाता है। हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? दिन दिहाड़े हमें उठाया, मुझे उठाने के बाद मेरे दोस्तों से रब्ता किया, मेरे दोस्तों से मुतालबा करते रहे, खौफ हिरास फैलाते रहे। मगवी का यह कहना है कि मेरी बीवी बेहोश हो गई, अस्पताल में दाखिल है, कि मेरे हस्बैंड को कौन उठा कर ले गया है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए सवालिया निशान है, पंजाब हुकूमत के लिए सवालिया निशान है, और जो इसमें तैनात पुलिस एहलकार हैं उनके लिए तो ये सवालिया निशान है। अब क्या ये जो दरख्वास्त थी, जो ये मुकदमा था, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट देखेगा? बिल्कुल, ये हेनियस क्राइम अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट देखेगा। ये मुकदमा आज दर्ज हुआ, दर्ज होते साथ ही क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास चला गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अब अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए क्या इकदाम करने हैं? क्या अब भी नेफे में पिस्टल चलेगा या अब भी उस साथियों की फायरिंग से साथी हलाक होगा? पेटी भाइयों को बचाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या मेरिट पे काम करेगा? अगर नहीं करेगा तो ये स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने मुतारिक हुए, एहतसाब के अमल को जारी रखा, पुलिस की गिरफ्तारियां अमल में लाई, पहला पुलिस एहलकार गिरफ्तार किया और सलासल पाबंद किया गया। लेकिन मगवी का यह कहना है कि मुझे अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे एक हवेली में बंद किया और बार बार पिस्टल के जो है वो बोर मारते थे, बुलेट मारते थे, मुझे कहते थे कभी गोली नीचे गिर गई है, अब ये गोली तुम्हारा निशाना बनेगी, तुम इस गोली के लुकमाए अजल बनोगे। मैं खौफ में मुब्तला हो गया, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे दिए और अपनी जान बचाई। आप हमारी स्क्रीन पे वो फुटेज भी देख सकते हैं जब मगवी के दोस्त पैसे दे रहे हैं और यही वो रिंग रोड है जहाँ पर वो पैसे फेंक रहा है। फेंकते हुए की फुटेज भी मंजरे आम पे आई। हवाम जो तहफ़्फ़ुज़ अपने अदारों को तहफ़्फ़ुज़ का अदारा समझती थी कि पुलिस एहलकार हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम करेंगी, सीसीडी अदारा जो एक तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम करेगा, उनके लिए एक कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इसी हवाले से आज हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पर गाड़ी में मौजूद इस रिंग रोड के इंस्पेक्टर और जो हेड है वो खड़े। हम उनसे पूछते हैं कि क्या अगवाकार पुलिस एहलकार यहाँ से गुजरते हैं तो आप उनकी रोकथाम करते हैं या नहीं? आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, शाम के इस पहर आप रिंग रोड पर नाका लगा के खड़े हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरता है
वो खा पुलिस एहलकार हो, ट्रैफिक वार्डन हो या कोई प्राइवेट हो, तो उनकी रोकथाम के लिए आप कोई इकदाम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल इस तरह ही है कि यहाँ पे ये देखें कि मैं खुद खड़ा हूँ, ये हमारा हरबंसपुरा का एंट्री पॉइंट है और थोड़ा सा आगे देखें तो वो हमारी गाड़ी एक और नज़र आ रही है। हमने इस एरिया को कार्डन किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं देखते हैं कि कोई भी किसी किस्म का कोई भी पुलिस ऑफिसर है या वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से है या लीड से है या कोई भी विंग है पुलिस का या ट्रैफिक पुलिस से है या ASF के एयरपोर्ट से है, सिक्योरिटी की ड्यूटी आती है, तो हम मेन कैरेज में हमारा रिंग रोड उनके अलाउड नहीं है। ये स्ट्रिक्टली उनको नॉट अलाउड है, इसको प्रोहिबिटेड एरिया है। सर्विस रोड वो यूज़ कर सकते हैं, तो इस एरिए को हमने नाकाबंदी भी की हुई है। हमारी जो ये गाड़ियाँ हैं, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, उनको किसी भी कीमत पे मेन कैरेज वे पे नहीं आने देते। अगर कोई आता है तो हम उसको राउंड अप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको यकीनी तौर पे उसको चलान कार्रवाई एज़ पर SOP जो हमारी लीगल जो एक्शन है वो हम लेते हैं और उनको नीचे एग्जिट करवाते हैं कि वो सिर्फ सर्विस रोड यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन जो कैरेज वे रिंग रोड है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसी हवाले से रिंग रोड के जो इंचार्ज हैं कमाहे से लेकर हरबंसपुरे रोड तक की इनकी बीट है, इंस्पेक्टर बिलाल, उनका यह कहना था अगर कोई भी प्राइवेट मोटरसाइकिल सवार में कोई पुलिस एहलकार हो, एलीट का एहलकार हो या कोई ट्रैफिक वार्डन हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का ही कोई नुमाइंदा क्यों ना हो, हम यहाँ पर खड़े हैं, उनको सर्विस रोड दिया गया है, वो सर्विस रोड यूज़ करेंगे। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है।